हेलो बेटा। आज हम चैप्टर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन वो डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डन हिज फर्स्ट फ्लाइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डू दिस वन, द रीडिंग ऑफ दिस वन। हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे। आई टेल यू दैट वट वी रेड आउट इन द फर्स्ट वन। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में वट वी रेड आउट हियर। एंड इन दिस वन द मेन स्टोरीज ऑफ सीगल। इस चैप्टर के अंदर जो मेन स्टोरी है दैट इज़ रिलेटेड टू यंग सीगल। किससे रिलेटेड है? यंग सीगल से रिलेटेड है। यंग सीगल हैविंग फियर रिगार्डिंग फ्लाइंग। उसको फियर था उड़ने के रिगार्डिंग। एंड हिज पेरेंट्स अनक्रेज्ड हिम बट लेटर his parents left him alone on the ledge because they want to teach him a lesson. And then later his mother made a plan, and according to that plan she moved toward him after taking fish in his beak. And when he tried to get that fish he fell down and he started to fly. नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ जाता है और फिर वो उड़ना जो है वो शुरू करता है. So he was able to complete his first flight. That's why the name is given his first flight. He's referred to young seagull. किसको रेफर करता है? young seagull को. Now come on this one. अब आते हैं हम the black aeroplane. The black aeroplane is also related to that one. In this also the main theme I told you, never lose hope. Okay, we must try again and again, and one day we will win. And the same here. The narrator of the chapter the black aeroplane was in the problem, but he didn't lose hope in that situation, in that miserable situation, you can say that. And because of his confidence, because of his quick decision making, you can say that, because of his positive attitude, because of his optimistic attitude, भी अपने कॉन्फिडेंस के कारण, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण एट लास्ट ही वॉज एबल टू सोल्व दैट प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को क्या कर पाता है? सोल्व कर पाता है. अब प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. ही and one more thing I want to tell you, the name is given the black aeroplane, and maybe you didn't observe in your life the color of the aeroplane is black. आपने कभी observe भी नहीं किया होगा black aeroplane. And why this title is given? Because the aeroplane which is highlighted here that really डजेंट एग्जिस्ट. जो यहाँ पे एरोप्लेन बताया गया है रियली में वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता. इट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द नरेटर. सिर्फ ये नरेटर की किसका पार्ट है? इमेजिनेशन का पार्ट है. ये आपको लास्ट में मैं बताऊँगी भी. ठीक है. तो स्टोरी में क्या क्या मेन पॉइंट है? नरेटर एंड पायलट बोथ आर सेम. ठीक है. जो नरेटर है वही कौन है? पायलट है. पायलट ऑफ नेम आएगा आपका डकोता DS-088, ओल्ड डकोता DS-088. ठीक है. द पायलट ऑफ ए डकोता प्लेन. एंड ही टोल्ड अस दैट ही वॉज वेरी ईगर टू गो टू हिज होम, एंड दैट इज़ इन इंग्लैंड. बड़ा ईगर है कहाँ जाने के लिए? इंग्लैंड जाने के लिए. And then when he was on the way to England, at that time he faced a very fearful storm. वो फेस करता है, किसको फेस करता है? स्टॉर्म को. तूफान आ जाता है. when he was going to England, at that time he faced a huge storm. Then he was lost in that storm, and he was also not able to get his way, and all the instrument which were in that plane, those were out of order. And later a black aeroplane suddenly appeared when he was in the problem, and he was not able to think, he was not able to take the decision नहीं ले पा रहा था कि भी क्या करूं. Then a black aeroplane helped, and the pilot of that black aeroplane हेल्प्ड हिम, एंड एट लास्ट ही लैंडेड सेफली. और लास्ट में वो क्या करता है? लैंड कर जाता है बड़े सेफली मैनर में. बट अ वेरी बिग सरप्राइज that was before you, before him. And what was that surprise? The surprise was when he was very eager to say thanks to the pilot of that black aeroplane, he came to know that there was no other aeroplane except his. उसके एरोप्लेन को छोड़ के और कोई वहाँ पे एरोप्लेन था ही नहीं. So at last it's given there, it was only his optimistic attitude, or there is it was maybe एंजल दैट वॉज सेंट बाय गॉड. कि भाई एंजल था जो किसने भेजा था? भगवान ने भेजा था. ओनली पर्टिकुलर यू कैन से दैट
a part of his imagination is hope and confidence which took the shape of black aeroplane, जिसने किसकी शेप ले ली, ब्लैक एरोप्लेन की। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। अब हम एक बार रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एक बार सुनना। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रो है आपका। देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। हु इज़ मी? Narrator, pilot of black aeroplane. He is saying that moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. ठीक है, दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द स्काई। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़ा अपोजिट लिख के आते हैं। ठीक है, दे राइट डाउन देर वर अ लॉट ऑफ क्लाउड्स। नो, देयर वॉज अ वेरी क्लियर स्काई, देर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई व्हेन ही स्टार्टेड टू गो टू इंग्लैंड। ओके, जब वो इंग्लैंड जाना शुरू करता है, when his plane take off from France, at that time the sky was very clear. Okay, and stars were shining in the clear sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Sleeping countryside, rural area. ठीक है, विलेज एरिया उसे बोलते हैं कंट्री साइड। तो मैं बड़ा खुश था जब मेरा जो जहाज़ था वो रूरल एरिया के ऊपर से उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और मैं कहाँ जा रहा था, वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. And I was started to take dream I would be in the next few hours or up to मॉर्निंग आई विल बी विद माई फैमिली, कि भी मैं कल सुबह तक अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा, उनके साथ में छुट्टियां बिताऊंगा। इस तरह के मैं सपने देख रहा था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी वॉच को देखा तो सुबह के कितने बजे हुए थे, 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर. ठीक है, मैंने वही जैसे ही टाइम देखा तो मैंने डिसाइड किया कि भाई पेरिस कंट्रोल रूम जो है उसको कॉल करता हूँ। और मैंने आगे की तरफ देखा। व्हेन ही डिसाइडेड, व्हेन ही लुक फॉरवर्ड एंड ही ऑब्जर्व्ड अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, देन ही डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट टू द पेरिस कंट्रोल एंड ही कनेक्टेड. And when he contact with them, he was calling Paris Control, DS Dakota 088, can you hear me? I am on the way to England, over. कि भी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ. ठीक है, जैसे मैसेज दिया जाता है, यू नो वेरी वेल, जैसे सोल्जर्स वगैरह भी मैसेज देते हैं ना, एट लास्ट दे यूज़ द वर्ड ओवर. ठीक है, इस तरह से वो भी मैसेज दे रहा है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली. जो आवाज़ रेडियो से आ रही थी उसने मुझे इमीडिएटली आंसर दिया. DS-088, आई कैन हियर यू, मीन्स पेरिस कंट्रोल से आंसर है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सकता हूँ, जो भी है. यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर. ठीक है, दैट पर्सन टोल्ड हिम द वे. उसे रास्ता बता दे कि आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अभी टर्न करना है, रास्ता बता रहे हैं. ठीक है, आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, इंस्ट्रूमेंट विच टेल अस डायरेक्शन. ठीक है, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने अपना जो दूसरा और लास्ट फ्यूल टैंक था उसे स्विच्ड ओवर मीन्स स्टार्टेड. ठीक है, उसे शुरू किया मैंने. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड. और मैंने डकोटा को 12 डिग्री पे वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ टर्न किया. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैं सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ठीक है, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बड़ा अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ईजी सी फ्लाइट थी, देयर वॉज नो प्रॉब्लम. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर. जो पेरिस था लगभग कहाँ था, कितनी दूर था, 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स. भी मैं पेरिस से 150 किलोमीटर तक आगे तक आ चुका था जब मैंने बादलों को देखा. ठीक है, जो प्रॉब्लम उसकी यहाँ से स्टार्ट होएगी. अब तक जो बेटा क्वेश्चन आए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है कि भी वो उसे हाउ वॉज द स्काई व्हेन ही टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस एंड वेयर ही वॉज गोइंग, वाई ही वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड वट वॉज ही ड्रीमिंग. ठीक है, किस तरह के वो सपने ले रहा था. एंड to whom he contacted and what was the reply from the Paris control, only these. ठीक है, यही क्वेश्चन. अब आते हैं यहाँ पे, उसकी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ठीक है,
storm clouds. They were huge and they looked like black mountains standing in front of me across the sky. ठीक है, तूफानी बादल, बड़े 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 ह्यूज लार्ज, बड़े बड़े बादल बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स के जैसे बिल्कुल मेरे सामने जो है वो आकाश में खड़े थे. ठीक है. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. मैं अच्छे से जानता था कि मैं उनके ऊपर से भी नहीं जा सकता और उनके भाई मैं साइड से उनसे ऊपर भी और मीन से ओवर दैम, अप एंड ओवर दैम, इनसे साइड से निकल के भी नहीं जा सकता मैं. आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. अगर नॉर्थ और साउथ में अगर मैं टर्न करके जाऊँ भी ना तो नीचे से जा सकता हूँ ना ऊपर से जा सकता हूँ, साइड से भी नहीं जा सकता मैं. इतना मेरे पास साइड से जाने के लिए, नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं है. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम उसके पास क्या थी? फ्यूल की थी. ठीक है. सेकेंड, आई ओट टू गो बैक टू पेरिस. लेकिन अब उसके पास दूसरा अल्टरनेट था. ही ओट टू गो बैक टू पेरिस. उसे कहाँ जाना चाहिए? वापस पेरिस वापस जाना चाहिए, बिकॉज इट्स ओनली 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. मैंने ये भी सोचा बट आई डिडंट डू दैट टास्क बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट होम. ये क्वेश्चन आता है वाई डिडंट ही गो बैक टू पेरिस? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम. आई वॉन्टेड दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट. He was very homesick and he wanted to take English breakfast. He was very eager to go home. That's why he didn't go back to Paris. ठीक है, वापस नहीं गया. उसने सोचा कि मैं सीधा ही जाऊँगा. आई विल टेक द रिस्क. आई थॉट, मैंने सोचा नहीं मैं रिस्क लूँगा. रिस्क उसने किसके लिए लिया? अपने घर के लिए. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और मैं उस ओल्ड डकोटा को सीधा जो है तूफान में उड़ा के ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. बादलों के अंदर एकदम सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया. नथिंग वॉज विजिबल देयर. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन से बाहर जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. पुराना एरोप्लेन जो है, बिकॉज इट वॉज ओल्ड, ही यूज़ द वर्ड ओल्ड. ऊपर भी उसने ओल्ड डकोटा यूज़ किया है. पुराना एयर प्लेन था तो पुराने प्लेन के कारण वो थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट किया, उसने जंप करा था. एंड देन ही टर्न इन द ईयर. ऐसे ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था. यहाँ पे ट्विस्ट का मतलब मूव्ड है, मूवमेंट हो रही थी. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास को देखा. ये उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. एवरीथिंग सडनली अपीयर ब्लैक. नथिंग वॉज विजिबल देयर. एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आएगी कि भी उसने क्या क्या प्रॉब्लम, हाउ वॉज द एनवायरमेंट इनसाइड द स्टॉर्म एंड हाउ डिड द नरेटर सफ़र इनसाइड द स्टॉर्म. स्टॉर्म के अंदर वो कैसे सफ़र करता है, तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा. ठीक है. देन आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास को देखा. आई कुडंट बिलीव माई आईज. मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कंपास जो है वो राउंड राउंड घूम रहा था. मीन्स डायरेक्शन वॉज नॉट अपियरिंग देयर. इट वॉज डेड. ये बिल्कुल डेड हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. ये काम नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गया? अचानक से डेड हो गए. नथिंग वॉज वर्किंग देयर. एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. ठीक है. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो पे कोशिश की. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. ठीक है. एंड देयर वॉज नो आंसर. द रेडियो वॉज डेड टू. ठीक है, रेडियो भी बिल्कुल क्या हो चुका था? डेड हो चुका था. ये उसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनती जा रही है बेटा. मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ. देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? नथिंग वॉज विजिबल. ठीक है, एवरीथिंग वॉज अपीयरिंग ब्लैक. नथिंग वॉज विजिबल. ठीक है, एक तो उसको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी. सेकेंड थिंग, देन ही ऑब्जर्व हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. कंपास वॉज डेड. डेड क्या हो गया था? बिल्कुल कंपास बिल्कुल क्या हो चुका था? डेड. डायरेक्शन वॉज नॉट अपेयरिंग देयर. थर्ड जो हमने अभी पढ़ा, अदर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑल्सो आउट ऑफ ऑर्डर. जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे दोज वर ऑल्सो अपीयर आउट ऑफ ऑर्डर. वो भी क्या हो गए? बिल्कुल ख़राब हो गए. नथिंग वॉज वर्किंग. कोई भी जो है वो काम नहीं कर रहा था. ठीक है. देन ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट टू द पेरिस कंट्रोल. अब ऐसे सिचुएशन में उसने क्या ट्राइड किया? पेरिस कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करने का. ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू द पेरिस कंट्रोल रूम. देखिए अब आगे. And then I had no radio, no compass. I couldn't see where I was. I was lost in the storm.
ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी अचानक से उन काले बादलों के बीच में बिल्कुल मेरे पास में आई सो अनदर एरोप्लेन, मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स पे लाइट्स ही नहीं थी। ये भी बड़ी स्ट्रेंज थिंग है, इट्स नॉट पॉसिबल देर इज़ एन एरोप्लेन एंड दैट एरोप्लेन इज़ नॉट हैविंग लाइट्स, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव सा साइन है। तो दिस थिंग आल्सो शो दैट दैट वाज द इमेजिनेशन ऑफ राइटर नरेटर ओनली, ठीक है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख सकता था उसके तूफान के अंदर भी कि वो मेरे साथ साथ ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के फेस को भी देखा। टर्न टुवर्ड मी, उसने मेरी तरफ टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ग्लैड होता है हैप्पी बेटा, मैं बड़ा खुश हुआ कि देर इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन इन द स्टॉर्म, आई एम नॉट द ओनली वन। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैंने एक हाथ उठाया और हिलाया, ठीक है। वेव्ड क्या होता है? मूव्ड, हिलाना। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, सॉरी ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और ऐसे हिलाया। एंड व्हाट इंडिकेशन वॉज गिवन, क्या इंडिकेशन दी? फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, फॉलो मी, यही कह रहा था वो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, क्योंकि वो जानता था मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा वो कोशिश करा मेरी हेल्प करने की। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ अपनी एरोप्लेन को टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए भी ईजी हो कि मैं उसको क्या कर पाऊँ, फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं भी बड़ा खुश हुआ उस एरोप्लेन के पीछे पीछे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद वो ब्लैक एरोप्लेन अब भी बादलों में था। नाउ ऑल्सो आई वॉज फॉलोइंग, means the narrator was following that aeroplane, that pilot, just like an obedient child. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब फिर दोबारा से एक न्यू प्रॉब्लम उसके सामने अराउज हो गई। अब वो न्यू प्रॉब्लम क्या है? there was only enough fuel in the old Dakota's last fuel tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उसका ओल्ड डकोटा सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ सकता था। I was स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फ्राइटेंड, फियरफुल, मैं फिर से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वो पायलट एरोप्लेन लेके नीचे जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उसको भी फॉलो किया स्टॉर्म में, ऐसे ही आई आल्सो स्टार्टेड टू गो डाउन। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ ए मी, तभी अचानक से बादलों से बाहर आके मैंने 2 लंबी स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिखाई दी। इट वॉज अ रनवे, वहाँ पे मतलब 2 स्ट्रेट लाइन थी और वहाँ पे जो लाइट्स दिखाई दे रही थी लंबी, जैसे पूरे रास्ते पे लाइट्स लगी हुई है। देन इट वॉज अ रनवे, वो क्या था? एक रनवे था। रनवे तो पता होगा ना, जहाँ पे एरोप्लेन उतरता है। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने भी टर्न किया अब किसको देखने के लिए? अपने फ्रेंड को, ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने लैंड किया, लैंडेड, गो डाउन, ठीक है, मैं नीचे गया। एंड मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था जब मैं कंट्रोल टावर के पास में उस ओल्ड डकोटा से बाहर निकला, ठीक है। तो क्वेश्चन आता, व्हाई डिड ही नॉट फील सॉरी व्हेन ही केम आउट फ्रॉम ओल्ड डकोटा, जब उससे बाहर आया तो वो सॉरी क्यों नहीं फील कर रहा था? देर इज़ ओनली वन रीज़न, द वन रीज़न बिकॉज व्हेन ही वॉज इनसाइड दैट एरोप्लेन देर वॉज अ ग्रेट रिस्क ऑफ लाइफ एंड नाउ ही केम आउट फ्रॉम दैट problematic situation, that's why he was not feeling sorry. I went and asked the women in the control center where I was. मैं वहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर गया, जो वहाँ विमेन थी उससे मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ एंड मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बड़ी स्ट्रेंज मैनर में उसने मेरी तरफ देखा। स्ट्रेंजनेस का रीज़न यहाँ पे आएगा, क्यों देखा। एंड देन लाउड, और फिर हंसने लगे। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, वहाँ पे नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, दिस इज़ द मेन थिंग।
What was the reply of and why did she feel surprised? Because there was no other aeroplane in the sky on that night. Yours was the only one. तुम्हारा ही सिर्फ अकेला था. And I could see on the रडार, जो मुझे रडार पे दिखाई दे रहा था. देर वॉज नो अदर एरोप्लेन, उसके अलावा और कोई भी एरोप्लेन नहीं था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो फिर किसने मेरी हेल्प की यहाँ पे सेफली आने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल के. मेरे टैंक में भी फ्यूल इनफ नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. कौन था वहाँ पे वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो बिना लाइट्स वाला जो एरोप्लेन था वो तूफान में उड़ा रहा था. सो इट्स अ मिस्ट्री. तो ये आपका चैप्टर किस पे ख़त्म होता है, एक मिस्ट्री पे ख़त्म होता है. बट यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द पायलट हेल्प हिम टू लैंड सेफली. क्या हेल्प करता है, उसका कॉन्फिडेंस हेल्प करता है. ही डिडंट लॉस द होप व्हेन ही वॉज इन द स्टॉर्म. जब वो तूफान के अंदर था तब भी उसने होप को नहीं छोड़ा. एंड एट लास्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली. और इसीलिए उसी कॉन्फिडेंस के कारण और उसी होप के कारण वो जो है वो लैंड कर पाया. ठीक है, तो ये है बस यहाँ पे इस चैप्टर का मेन थीम. आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स. उम्मीद करती हूँ सबको सारी बातें समझ आ गई होंगी बेटा. और अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.